Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Sorry to keep you waiting for some time. We had some technical faults. Inshallah, we'll try to overcome these technical things. I am glad that you came. This is really good to see you all. There are some new faces as well, and some ones who are regularly coming. How many of you come for the first time to my seminar? Okay, great. So a warm welcome to all of you, those who come and those who came before as well. आज का हमारा जो seminar है, it will be half seminar and half activities, because you know the topic is enjoy your own life. So खाली बातों से enjoy नहीं किया जा सकता. I mean, I'm gonna show you some practical things, and as usual, those who come regularly, they know we have a lot of activities and exercises to make you feel. So basically, आज का जो seminar है, इसमें purpose ये है कि we are going to enjoy together over here, and then you got to take this very thing with you outside the seminar. You will learn how to enjoy, and you will feel the joy. वो joy आप feel भी करेंगे. But afterwards, that should stay with you, that should go with you. So that is going to happen in this seminar. Clear? Topic क्या है? Enjoy your own life. Now, enjoy your own life doesn't mean you have to be selfish. कि जी मैं बस अपनी life enjoy करूँगा, बाकी सब लोग जाएं जहन्नम में, भाड़ में, मेरा ताल्लुक अपने साथ है, so I'm going to enjoy my own life. It doesn't mean that. It means you need to enjoy your own life without any comparison with others. You know, at times what do? We compare our life with others. हम अपनी life को दूसरों के साथ compare करते हैं. So you're going to learn to enjoy your own life without any comparison with others. So that's what we are going to do. The word enjoy means to get pleasure from something, right? So enjoy means to get pleasure from something, and when you're going to get pleasure from life, basically that something is going to be life. You're going to get pleasure out of life. And when we say enjoy yourself, इसका मतलब है to get pleasure from the situation. अब आपने अक्सर नोट किया होगा कि दोस्त आपस में मिलते हैं, वो कहते हैं यार आज तुम समोसे खिलाओ. स्मॉल ओकेजन, वेरी स्मॉल ओकेजन. वो कहता है यार मेरे पास पैसे नहीं है. नहीं आज तूने समोसे खिलाने हैं, जो मर्जी हो जाए. एक कहता है मैं कोल्ड ड्रिंक्स पिला दूंगा. सो यू स्पेंड अराउंड हाफ एन आवर एंड एट द एंड यू आर सो हैप्पी कि आज हमने उससे समोसे खाए हैं. होता है कि नहीं होता? राइट? सो दिस इज हाउ सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन है, हाउ टू गेट प्लेजर आउट ऑफ दैट सिचुएशन, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू discuss today. Again, I tell you, it's going to be half seminar and half activities. आपको नींद तो नहीं आ रही? हाँ, जाग रहे हैं ना? मुझे यहां से लग रहा है कि आप सो रहे हैं. नहीं, आपके साथ जो बैठे हुए हैं, ये अच्छा, ओके, ऑल राइट. या नींद में है. मैंने कहा अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं भाई, अभी तो मैं शुरू करने लगा हूं. अगर अभी से नींद आ रही है तो आपको यहाँ भाई सोफे पे बिठा देते हैं, थोड़ी देर के लिए आराम कर लें. हाँ, ओके, ऑल राइट, गुड. So there are two things. एक है living. अब देखें, enjoy your own life के सेमिनार में आए हैं तो enjoy भी करना है, and there should be a smile on your face as well. और वो smile आपने खुद create करनी है कुछ सोच के. You need to think about happy moments of life. सबकी जिंदगी के होते हैं ना happy moments. उनके बारे में सोचें. मूड अच्छा हो ना तो छोटी सी बात पे भी हंसी आती है, अगर मूड अच्छा हो. और अगर मूड बुरा हो, टॉप 10 में से भी कोई एक जोक आपको सुनाए ना, तो आप एंड पे कहते हैं अच्छा हंसना था. होता है ना ऐसे, क्योंकि आपका मूड नहीं है. मूड होगा तो जोक भी आपको फनी लगेगा, और अगर मूड नहीं है तो डेफिनेटली वो जोक भी आप पे असर नहीं करेगा. सो देयर आर टू थिंग्स. वन इज लेट्स चार्ज यू अ लिटिल. उसके बाद शुरू करते हैं ताकि थोड़ा सा अगर किसी को नींद आ रही है, बेजारी आ रही है चेहरे पे, वो दूर हो जाए. ओके, आई एम गोइंग टू से अ फ्यू वर्ड्स एंड यू गॉट टू से यस और नो. बात को समझने और फिर कहना है yes or no, whatever it is, right? Are you sleeping? No. Loudly. Are you sleeping? No. Are you ready? Yes. Are you happy? Yes. Are you Bengalis? No. Good. Okay, we are Pakistanis. All right, that's great. Now let's do another thing.
आई एम गोइंग टू से लॉन्ग लिव और आपने कहना है पाकिस्तान, राइट? जैसे हम कहते हैं ना पाकिस्तान जिंदाबाद, आई विल से लॉन्ग लिव और आपने कहना है पाकिस्तान, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। ओके, इसे दाएं बाएं की भी नींद उड़ जाएगी, ठीक है? you'll be feeling good afterwards, right? So I was telling you, दो चीजें होती हैं, एक है living, गुजर बसर करना, गुजारा करना, एक होती है life. These are two different things. So we make a living by what we get. अब फर्ज करें अगर मैं कहीं पे जॉब करता हूं, मुझे जो वहां से सैलरी मिलती है, उस सैलरी से मेरा गुजर औकात होता है, मैं अपना जो है घर का फैमिली का गुजारा करता हूं, that is what actually my living. So one thing is living. We make a living by what we get. आप में से कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं? Okay, by the end of the month, when you receive the salary, with that salary you make a living. और बस का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है, प्रॉब्लम भी आते हैं, how to make a living. So you make a living by what you get. That can be salary. If you are a business person, that can be profit, right? But on the other hand, जब हम बात करते हैं ना लाइफ की, actually we make a life by what we give. We make a living by what we get, and we make a life by what we give. जो चीज आप देते हैं उसमें क्या है? उसमें चैरिटी भी है, उसमें हैप्पीनेस भी है, उसमें अच्छी फीलिंग्स भी है, उसमें गाइडेंस भी है. Anything you give, that actually makes your life. So if you give the bad things, your life will be bad. अगर आप अच्छी चीजें देंगे, so life will be good. So always remember, you always make a living by what you get, but you make your life by what you give. जो सोसाइटी को देंगे, माशरे को देंगे, कम्युनिटी में देंगे, फैमिली में देंगे, दोस्तों में देंगे, definitely you're going to make life with that. So it's a sort of give and take. Okay, basics of enjoyment. There are few things. You can enjoy if you are going to help others. अब बात ज़हन में रखिएगा, enjoyment and happiness. Basically, happiness cannot be attached with anything. You cannot attach happiness with any condition. You cannot attach happiness with any person. You cannot attach happiness with anything. If you are going to do so, that is all temporary. Right? जॉब कितने लोग करते हैं? आप करते हैं माशाल्लाह, राइट? सी दैट अगर फर्ज करें कल आप ऑफिस जाते हैं और आपको ऑफिस में जाते ही वो कहते हैं जनाब आज से आपकी सैलरी डबल हो गई, ठीक है? खुश होंगे? 1 से 10 तक खुशी का लेवल क्या होगा? 10 out of 10 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आपने एक प्राइस बॉन्ड खरीदा या लॉटरी का टिकट खरीदा और आपको पता चला कि जी वो आपने जो 10,000 का या 7,500 का प्राइस बॉन्ड लिया था उसमें आपका 5 लाख का इनाम निकल आया, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख का. खुश होंगे? हैप्पीनेस, इंजॉयमेंट सब कुछ आएगा. और लेवल 1 से 10 तक कहां पे होगा उसका? 10 तक लिबरेज होंगे, खुशी से भरे होंगे. रिमेंबर वन थिंग, दीज टाइप ऑफ प्लेजर्स एंड दीज टाइप ऑफ हैप्पीनेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, that has only the lifespan of 6 months. ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूं. इस तरह की जो खुशी है ना उसका लाइफ स्पैन इट्स ओनली 6 months, नॉट मोर देन दैट. 6 माह के बाद बैक टू द पॉइंट आपकी जो हैप्पीनेस का लेवल है ना, अगर लॉटरी जीतने से पहले जो आपका हैप्पीनेस का लेवल था 6 माह के बाद वहीं पे आप वापस आ जाएंगे, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बिकम देन नॉर्मल फॉर यू. अब अक्सर लोग हैं जो फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, अप्लाई करते हैं, वीजा लग गया. फर्ज करें आपका अमेरिका का वीजा लग गया, हैप्पीनेस का लेवल कहां पे जाएगा? 10 पे, राइट? वीजा लग गया, वाह जी वाह, जैसे खबर मिली वीजा लग गया 10 पे जाएगा. उसके बाद प्रेपरेशन करते करते थोड़ा सा नीचे आ जाएगा. अमेरिका पहुंच के जब वहां की लाइफ देखेंगे, लाइफस्टाइल देखेंगे, तो वो वापस नॉर्मल पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा इवन. ये एट टाइम्स इट कैन बी. बट द थिंग इज दिस टाइप ऑफ हैप्पीनेस, अब ये कौन सी हैप्पीनेस है? अगर मेरी लॉटरी निकल आए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मेरी सैलरी डबल हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मेरा वीजा लग जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा. दिस इज एक्चुअली नॉट द वे टू बी हैप्पी. अगर इस तरह की तलाश में रहेंगे तो फिर शाज़ो नादिर, जैसे साल में 2 या ईदें आती हैं साल में, राइट? इसी तरह से आपको हैप्पीनेस मिलेगी एंड देन यू विल एंजॉय, बट आफ्टरवर्ड्स इट विल बिकम नॉर्मल फॉर यू.
द थिंग इज हैप्पीनेस इज बेसिकली नॉट अ डेस्टिनेशन. खुशी जो है वो डेस्टिनेशन नहीं है. मरी कितने लोग गए हैं? गुड. सियाहती मुकाम है पाकिस्तान में मरी, राइट? अब मरी जाते हुए मुझे यह बताइएगा, मरी पहुंच के ज्यादा इंजॉय किया या जो मरी का सफर किया उसको ज्यादा इंजॉय किया? सफर को. जब पहुंच गए तो अच्छा जी मरी आ गया, ठीक है, हम मरी में पहुंच गए, अब आ गया, लेकिन जो सफर था, यहां से निकले, उसके बाद मोटरवे का सफर, दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे, ये वो, रास्ते में चाय पी, कॉफी पी, खाना खाया, फिर वो जो पहाड़ी रास्ते थे उसका सफर, सब में से किसी एक को डर लग रहा था, उसको और डर आ रहे थे. सी दैट वाज एंजॉयमेंट. और फिर वहां पे पहुंच के, ऑल्दो पहुंचने के बाद भी आपने एंजॉय किया होगा, बट एक्चुअली द मेन जॉय और एंजॉयमेंट दैट वाज इन द डूइंग ऑफ सो. बिल्कुल इसी तरह लाइफ की जो अचीवमेंट्स हैं, अचीवमेंट में उतना मजा नहीं है जितना मजा उस रास्ते पे चलने में है कि जिस पे चल के आप उस चीज को अचीव कर लेते हैं. देयर यू एक्चुअली एंजॉय. वंस यू रीच देयर देन इट्स नॉर्मल. आई वेंट टू सकरदू. सकरदू गया, सबसे पहले लाहौर से एबटाबाद गया. देयर आई स्टेड फॉर सम डेज. एबटाबाद से सफर शुरू किया, सुबह सुबह सारा दिन गाड़ी चलाई, आधी रात को चल्लास पहुंचा. ऑलमोस्ट इट वाज मगरिब टाइम या व्हेन आई रीच देयर. देयर आई टुक अ होटल. उसके बाद अगले दिन सफर शुरू किया. बड़ा रास्ते में जनाब एक साइड पे दरिया जा रहा है, पहाड़ हैं, बिल्कुल वीरान इलाका, एंड आई एंजॉयड दैट वेरी मच. बट वंस आई रीच सकरदू, दिल चाह रहा था भी थोड़ा सा और होना चाहिए था. It should have been continued for some more time, क्योंकि असल जो मजा है that is in journey. So basically happiness is not a destination. कोई भी बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो खुशी से नाच रहा हो और आप कहें भाई क्या हुआ, कोई जी 10 साल पहले मेरा प्राइस बॉन्ड निकला था. मिलेगा कोई ऐसा बंदा? कभी भी नहीं. कोई बंदा भी आपको खुशी से लबरेज ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे जी 15 साल पहले ना मेरा अमेरिका का वीजा लगा था, बड़ा ही मजा आया था. नॉट एट ऑल, राइट? तो बात यह तय हुई कि हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट, बेसिकली हमने क्या करना है, वो जिंदगी का जो सफर है ना, उस सफर को करते करते हमने एंजॉय करना है. एंड वी आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड और वी आर नॉट गोइंग टू सी कि कौन सी चीज आएगी तो मैं एंजॉय करूंगा. वी नीड टू फाइंड द वे टू एंजॉय. अब आप इस सेमिनार में आए हैं ना, राइट? यू आर ऑल हियर. आए हैं कि नहीं आए? बताएं तो सही ना. ओके, ऑलराइट, ऑलराइट. आप इस सेमिनार में आए हैं. इस सेमिनार में आने के बाद आप एंजॉय करते हैं या फिर आप इंतहाई लेवल पे जाके बोर हो जाते हैं? ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू. ऑल्दो इट डिपेंड्स ऑन मी एज वेल, बट एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन यू एट द सेम टाइम, राइट? अगर आपके अंदर खुशी है, आपके अंदर एक पैशन है, ऑब्वियसली यू विल बी एंजॉयिंग. छोटी छोटी बात में आप देखते हैं, कोई भी मजाकिया बात होती है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कह के टॉप पे हैं. अभी हम हंसे, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कह के जो है वो टॉप पे हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बस ओके, आवाज जो है ना, अब ये देखे ना माशाल्लाह क्या लग रहा है. और यहीं पे कुछ ऐसे भी है जो अंदर से हल्की सी आवाज निकलती है, उसको भी दबा लेते नहीं, मैंने नहीं हंसना, होता है ना. सो इट डिपेंड्स ऑन यू. दिस इज द वे, एक्चुअली दिस इज द वे टू एंजॉय, दिस इज द वे टू फाइंड जॉय इन लाइफ. बल्कि वो कहते हैं यू डोंट नीड टू फाइंड द जॉय, एक्चुअली जॉय विल ऑटोमेटिकली कम टू यू. यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट, राइट? सो ओके, there are two things. One, basically happiness and joy is a state of mind. Happiness and joy is a state of mind. वो state of mind जो है, you can create that, and that state of mind is always with you. याद रखिएगा, जो best feelings है ना, आपकी best feelings, these best feelings are always with you. You have these best feelings. अब वो outer conditions ऐसी होती हैं जिससे आप उसको एकदम feel करने लग जाते हैं ज्यादा. Now for example, you want to meet someone, किसी से मिलना चाहते हैं, कोई भी है, ABC whatever, and you are passionate to meet that person, right? अब आपके अंदर feelings हैं, एक एहसास है कि मैंने फलां शख्स से मिलना है. By the time the person comes in front of you, आपके अंदर एक अजीब सी कैफियत आ जाती है, एक फीलिंग आ जाती है. Now actually that was very much inside you. वो फीलिंग आपके अंदर थी, लेकिन क्या हुआ कि आपने उस फीलिंग को उस शख्स के साथ अटैच किया हुआ था. आई टेल यू वन थिंग मोर. बारिश कितने लोगों को अच्छी लगती है? और जब बारिश होती है तो कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है? ओके, दैट्स लवली, वेरी गुड. आई टेल यू एन इंसिडेंट. वी आर टॉकिंग अबाउट जॉय एंड हैप्पीनेस, कि कैसे हम अपने उन जज्बात को खुद से ट्रिगर करते हैं. व्हाट हैपेंड, वंस आई वाज शावरिंग, or from the window I saw the water was falling,
and it was the morning time, and I realized, oh God, it's raining. And all together, because I had to go out for work, मेरी जो feelings थी वो बदल गई कि आज बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा होगा, I will enjoy the rain and all that stuff. Totally prepared to enjoy the rain. And when I came out of the washroom and later on I realized कि वो जो पानी वाली टैंकी है ना, वो मेरे उस बाथरूम की छत पे थी, वो भर के ओवरफ्लो हो रही थी, उसका पानी नीचे गिर रहा था. लेकिन यकीन करें, मेरी 100% बारिश वाली फीलिंग्स, 100% होता है ना बारिश वाली फीलिंग्स, I felt that way. Now actually those feelings were inside me. मैंने अपने आप को मैसेज दिया कि बारिश हो रही है. जैसे ही मैंने अपने आप को मैसेज दिया बारिश हो रही है, मेरी वो फीलिंग्स ट्रिगर हो गई, and then they came out and I enjoyed. So this is basically what the joy and happiness is. Okay, there are two things. One is chase and chasing, and second is living. So it is said, stop chasing, start living. Stop chasing, start living. What do? We chase. राइट हम लोग चीजों को चेस करते हैं. अब ये चेस करने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, किसी भी चीज को चेस ना करें, जो होता है उसको होने दें एंड ऑल दैट स्टफ. बेसिकली you are not going to chase happiness, you're not going to chase joy, you're not going to chase these type of things. Okay, if you're ready, I'll tell you a story. मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं. Quite interesting. There was a boy, उसका नाम था Peter. It's a very popular story. Peter is a boy. अब मैं बता रहा हूं, stop chasing and start living. Stop chasing and start living. Peter की कहानी आपको सुनाता हूं. Peter was a school boy. स्कूल का एक तालिब इल्म, and he was unhappy with his school life. आज कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो अपनी स्कूल लाइफ को मिस करते हैं? जरा हाथ खड़ा करें. गोल्डन पीरियड था कि नहीं? और जब वो गुजार रहे थे नहीं पता था. हाँ, मुश्किल था. कभी कोई टीचर जो है वो हिटलर था, कभी और कोई प्रॉब्लम्स थे, और अब वो टाइम जो है याद आता है. सो पीटर हैड सर्टेन इश्यूज. ही वाज अ स्कूल बॉय. और फिर पीटर ने जो है सोचा कि मैं क्या करूं. एक दिन घर वापस जा रहा था, उसे एक जादूगरनी मिली. जादूगरनी ने कहा कि बेटा तुम बड़े परेशान लग रहे हो, क्या मसला है तुम्हारे साथ, क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा आई एम वेरी अनहैप्पी विद माई लाइफ. मैं चाहता हूं कि मैं जल्दी से ये स्कूल लाइफ जो है ना इसको खत्म कर दूं. तो उसने क्या किया, उसने उसको एक बॉल गिफ्ट किया, जादूगरनी ने. उसने कहा इस बॉल के साथ थ्रेड लगा हुआ है, राइट? सो आपने क्या करना है, इस थ्रेड को खींचोगे, 3-4 साल आगे चले जाओगे. फिर दोबारा अगर वहां पे भी खुश नहीं हो, थ्रेड को खींचोगे, उससे आगे चले जाओगे. पीटर बड़ा खुश हुआ कि वाह भाई जबरदस्त कि मुझे मैजिक बॉल मिल गया है, अब मैं आराम से अपनी जो परेशानी है उनको कवर कर लूंगा. पीटर क्लास में गया, देखा स्कूल टीचर होमवर्क ये वो, उसने कहा जी जान छुड़ाते हैं. उसने बॉल को चेक करने के लिए उसकी थोड़ी सी डोरी खींची, 5 साल आगे चला गया, राइट? एंड देन देयर ही वाज वेरी एक्साइटेड. वाओ जबरदस्त, माय स्कूल लाइफ इज गोइंग टू कम टू एन एंड एंड ऑल दैट. उसके बाद ही स्टार्टेड हिज कॉलेज लाइफ. इन द बिगिनिंग ही वाज क्वाइट एक्साइटेड, लेकिन बाद में क्या हुआ, वही पीटर बोर हो गया. ये क्या मुसीबत है, कॉलेज जाना पड़ता है एंड ऑल दैट स्टफ. और उसी कॉलेज लाइफ में ही फेल इन लव. अब उसने कहा कि जी 5 साल आगे जाऊंगा तो शादी होगी ना, बस शादी हो जाए बाकी खैर है. सो अगेन उसके ज़हन में ख्याल आया मैजिक बॉल का. उसने कहा थोड़ी रस्सी और खींच देता हूं. वो रस्सी खींची तो 5 साल आगे चला गया, शादी हो गई. शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पीटर जॉब कर रहा है एंड ही इज हैविंग अ फैमिली, और साथ ही बच्चे हो गए. नाउ ही हैज टू टेक केयर ऑफ द किड्स. ने कहा ये क्या मुसीबत पड़ गई भाई, कि मतलब अब बच्चे हैं उनकी देखभाल करो, फैमिली है उसको देखो. ही थॉट कि ये बच्चे जब स्कूल गोइंग हो जाएंगे ना, एक्सीलेंट हो जाएगा. अगेन उसने थोड़ा सा और धागा खींचा, बच्चे 6-7 साल के हो गए, बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया. पीटर उस फेज में आया बड़ा खुश कि वाह अब सुकून है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं. लेकिन जब रियलिटी में आया तो उसने देखा कि बच्चों की स्कूल की फी भी देनी है, बच्चों की एजुकेशन के भी एक्सपेंसेस हैं, बच्चों के हेल्थ के भी एक्सपेंसेस एंड ऑल दैट. एंड देन ही थॉट मेरी इनकम तो कम है, मैं अगर कुछ ऐसा करूं कि ये बच्चे थोड़े और बड़े हो जाएं तो फिर मेरा मसला हल हो जाएगा. अगेन उसने थोड़ी रस्सी खींची और बच्चे जो थे वो बड़े हो गए. और बच्चे जैसे ही बड़े हुए तो बाप जो है वो बूढ़ा हुआ. नाउ ही हैड सर्टेन हेल्थ इश्यूज. पीटर के हेल्थ इश्यूज शुरू हो गए, बच्चों की कॉलेज की आगे की फीस शुरू हो गई, एंड ही हैड टू डू एक्स्ट्रा वर्क. उस बेचारे के बाल भी सफेद हो गए. उसने कहा ये नहीं, अब बच्चे जब बरसरे रोजगार हो जाए ना तब मैं सुकून में आ जाऊंगा. उसने फिर थोड़ा धागा खींचा,
बच्चे बरसरे रोजगार भी हो गए, बच्चों को जॉब्स मिल गई। पीटर जो था वो अब जनाब सफेद बाल बढ़ापे में आ गया। एंड देन वन डे अगेन ही वाज हैविंग सर्टेन इश्यूज। उसने कहा नहीं जी, मैं जब इससे भी बड़ा हो जाऊंगा ना, जब मेरे पोते हो जाएंगे, तब सुकून है कि मेरा काम सिर्फ पोतों के साथ खेलना एंड ऑल दैट। सो ही पुल्ड द स्ट्रिंग और वो उस लाइफ में आ गया। अब जनाब वो स्टिक लेके चलता था और उसने फिर सोचा कि इससे अच्छा तो मेरा वही वक्त था जब मैं स्कूल में जाता था, कोई टेंशन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। तो उस बेचारे ने ना सोचना शुरू कर दिया कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं वापस चला जाऊं। लेकिन वक्त हाथ से निकल गया था। इतना वो बेचारा रो रहा था, आंखों से उसके आंसू टपक रहे थे, बूढ़ा बाबा रोई जा रहा है। और फिर क्या हुआ, इतनी देर में पीटर को आवाज आई, पीटर वेक अप, इट्स टाइम टू गो टू स्कूल सन। एंड ही रियलाइज्ड इट वाज अ ड्रीम। उसने आंखें खोली, इर्द गिर्द देखा, ओ शुक्र अल्लाह का कि ये ख्वाब था, हकीकत नहीं थी। राइट? सो इन द सेम वे हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि ये चंद साल गुजर जाए ना, अगले 4 साल सुकून वाले हैं। वो अगले 4 साल आते हैं, कोई नई चीज जो आपने सोची भी नहीं होती, कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता, वो सामने आके खड़ी हो जाती है। फिर आप कहते हैं बस अब इस मसले से निकल जाऊं ना। वो एक दोस्त था मेरा, उसने शादी की कमेटियां डाल के, कहते हैं शादी की कमेटियां डाल के। अब वो शादी तो हो गई लेकिन कमेटियां तो देनी थी। तो उसका हमेशा यही कि सर जी बस ना ये 2 साल हैं मुश्किल, एक दफा ये कमेटियां उतर जाए ना, उसके बाद सुकून ही सुकून है, फिर कोई टेंशन नहीं है। वो 2 साल भी गुजर गए। तो उसके बाद जनाब फिर ही हैड द बेबीज, और फिर वो बच्चों के लिए भी करना है एंड ऑल दैट स्टफ। सो यू डोंट नो कि आप जा रहे हैं एक अंधेरी गली में, आगे क्या खड़ा हुआ है, यू डोंट नो दैट, आपको नहीं पता। सो दैट इज व्हाई डू नॉट कंडीशन योर हैप्पीनेस, योर जॉय विद एनीथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। कोई भी ऐसा काम जो मुस्तकबिल में होना है, उसके साथ अपनी खुशी को अटैच ना करें। हु हैज सीन द फ्यूचर? हु हैज सीन द फ्यूचर? किसी ने भी नहीं देखा फ्यूचर में जाके क्या हालात होंगे, क्या कंडीशंस होंगी। आई मीन दिस द थिंग, यू हैव टू एंजॉय योर लाइफ नाउ, राइट नाउ। वो जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो किस चेयर पे बैठते हैं ज्यादातर? क्या कहते हैं उस कुर्सी को? रॉकिंग चेयर, रॉकिंग चेयर, राइट? तो अगर आप लाइफ को अभी एंजॉय नहीं करते तो जरा सोचें रॉकिंग चेयर पे कितना कि आप लाइफ को एंजॉय कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, आगे पीछे हो जाएंगे, यही कर सकते हैं ना। सो अब आपने खुद डिसाइड करना है कि यू वांट टू एंजॉय योर लाइफ ऑन द रॉकिंग चेयर और एक्चुअली मूविंग अराउंड हियर एंड देयर। ओके, सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस? यस, यू ऑल, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस। बुरा दिन गुजारना चाहें, you can do that entirely depends on you। अच्छा दिन गुजारना चाहें, कुछ बुरा भी होगा ना, आप उसको क्रॉस कर लेंगे and then you'll try to be happier। Okay, there's another thing what we do, we actually outsource our happiness and joy। outsource का word सुना हुआ है? outsource, hello, are you all right? नींद आ रही है? okay, all right, what we do, we outsource our happiness to conditions, to people and to circumstances। I can give you a very good example। What is this? लॉक, ठीक है, और ये लॉक के साथ क्या है? कीज है। अब मैंने इस लॉक को खोलने, खुल गया, खुल गया। ये लॉक किस चीज का है? हैप्पीनेस का। किस चीज का लॉक है? हैप्पीनेस का लॉक है। दिस इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस। ओके, सो अगर ये लॉक खुला हुआ है तो इसका क्या मतलब है? आई एम हैप्पी। अगर ये लॉक बंद है तो इसका क्या मतलब है? आई एम सैड। ठीक है, अब ये लॉक बंद है तो आई एम सैड, बट इफ द लॉक इज ओपन देन आई एम हैप्पी। अब हम लोग क्या करते हैं, इस लॉक को बंद कर देते हैं और लें जी, इस लॉक को बंद करने के बाद इसकी जो कीज हैं, ठहरें, ऑलराइट, इट्स गोना टेक मी सम टाइम। ओके, हियर, हियर एंड हियर। नहीं जी, लॉक को बंद कर दिया। ये एक चाबी मैंने दे दी इनको, एक चाबी दे दी इनको, ठीक है, और एक चाबी मैंने दे दी इनको। राइट हो गया? 3 लोगों को चाबियां दी और हमने खैर बड़े लोगों को चाबियां दी। अब 3 लोगों को चाबी पकड़ा के यहां मुंह बसोर के बैठा हुआ है।
राइट? क्यों मुंह बसोर के बैठा हुआ है? क्योंकि मेरी खुशी का दारोमदार इनके पास है, इन पे है। मेरी खुशी का दारोमदार आप पे है, मेरी खुशी का दारोमदार आप पे है। एक स्टूडेंट था, मैं एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता था, तो मुंह बना के ना बैठा हुआ क्लास में, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के साथ अक्सर फ्रेंडली होता हूं, बहुत फ्रेंडली, यहां तक कि वो मुझे अपनी बातें भी बताते हैं फिर, राइट? आई वाज क्वाइट फ्रेंडली, मुंह बना के ना बैठा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ है? सर वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रही। क्या कहता है? सर वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रही। अब आप ये देखें कि मैसेज का आना जो है, दैट इज द की टू हैप्पीनेस। मैसेज आ गया तो बच्चा खुश, और मैसेज नहीं आया तो मुंह बना के बैठा हुआ है कि जी वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रही। क्या किया उसने? He gave the key to his happiness to that very lady, right? This is one small example what we do, and in the same way आप क्या करते हैं? आप अपनी हैप्पीनेस की बाज़ औक़ात फ्यूचर में फेंक देते हैं, बल्कि अक्सर यही होता है, फ्यूचर में फेंक देते हैं कि अच्छा जी ये मेरे पास है, इंशाल्लाह ताला 3 साल बाद इसकी चाबी मिलेगी, फिर इसको खोलेंगे, फिर देखना खुशियां ही खुशियां। ऐसे ही होता है ना फ्यूचर के किसी काम के साथ, राइट? एंड इफ आई एम गोना गिव इट टू देम, नाउ फॉर एग्जांपल आपके पास है की, आपके पास, जरा खड़े हो जाए जिनके पास कीज हैं। ओके, नाउ लेट्स सी, मैं आपसे चाबी मांगूंगा लेकिन आपने चाबी नहीं देनी, प्लीज की दे दें, आपकी मेहरबानी, प्लीज यकीन करें मेरा दिल दुख रहा है, प्लीज यार आप तो अच्छे इंसान हो, मेरा ख्याल करो यार। देख रहे हैं खा ली है। उन्होंने खा ली है। तो ये ताला जो है, ये ताला समझ रहे हैं ना कौन है? ये बेचारा ऐसे जलील होगा, आई एम यूजिंग द वर्ड लिटरली, ऐसे जलील होगा। इधर आएगा तरले मिनते, इधर आएगा मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज के जवाब दे दें, यहां पे कॉल उठा लो प्लीज, कॉल तो उठा लो। I'm talking about one side, right? But actually, as they're not gonna give me that key, I'll be sad, right? अब चाबी दे दें, अब ओरिजिनल है। अब इन्होंने मुझे की दे दी, ये की इसको लगाई, ताला खुल गया। ओह यस, मजा आ गया आज तो। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू, दिस इज ग्रेट, आई एम सो हैप्पी। वाह जी वाह, क्या ही बात है। लाइफ इज ब्यूटीफुल, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना। क्या ही बात है। थोड़ी देर बाद कहीं और से लॉक लग गया, चाबी निकल गई। अब यही बंदा जो गाना गाता था ना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, अब क्या गा रहा है? अच्छा सिला दिया तूने। Something like that, right? So what we've done, we've given the keys away to the people that you can make me happy, you can make me happy। इस ताले के साथ 3 चाबियां थी, वरना मैं आप सब लोगों को एक एक चाबी देता, एंड देन आप मेरे साथ खेलते। और फिर पता है क्या है? चाबी देना और चाबी लेना, दैट इज इन योर कंट्रोल। यू कैन गिव मी द की एंड एकदम निकाल के इसको ताला भी आप लगा सकते हैं। सो रिमेंबर, डू नॉट गिव योर कीज, द कीज टू हैप्पीनेस टू एनीबॉडी अराउंड, राइट? लोगों को, although you can give importance to the people, but you should have the master key of your happiness। मास्टर की जो है ना हैप्पीनेस की, वो आपके पास होनी चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, अगर मैंने इनको भी चाबी दे दिया तो क्या हुआ, मेरे पास एक और चाबी है, खोल लूंगा। अब ये एक और चाबी को गलत साइड पे लेके जाना, ओके? आई नो व्हाई यू स्माइलिंग, कि अगर यहां से ना मिली, मेरे पास एक और चाबी भी है, वहां से भी खुशी का ताला खुल जाएगा, एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, दिस इज वन थिंग। There is another thing, expectations and then the results. So usually we are happy if our expectations are met। अगर आपकी तवक्कुआत पूरी हो जाती हैं तो आप खुश हो जाते हैं, और अगर आपकी तवक्कुआत पूरी नहीं होती तो आप दुखी हो जाते हैं, गमज़दा हो जाते हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड द रिजल्ट, एक्सपेक्टेशन माइनस रिजल्ट, जो उसका डिफरेंस है, दैट डिटरमिन्स योर लेवल ऑफ हैप्पीनेस एंड योर लेवल ऑफ एंजॉयमेंट। इफ यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट मोर एंड मोर, देन क्या आप खुश रह सकते हैं? If you're expecting more and more, you will never be happy. But if you're expecting a little, ये मिसाल मैंने पहले भी दी थी कि फर्ज करें आपको बेहद भूख लगी है, बेहद, एक ऐसे लेवल पे, और आप किसी के घर जा रहे हैं और आप कहते हैं या अल्लाह वो मुझे बस खाना खिला दे, ये ना हो पानी पे या चाय पे टरखा दे, खाना खिला दे, बेशक दाल बनी हो
इस वक्त तो ऐसी कैफियत हो रही है कि बेशक दाल भी बनी हो ना, मैं वो भी मजे से खाऊंगा। व्हेन यू रीच देयर, वहां पे आपको मुर्ग मुसल्लम मिल जाता है, राइट? तो क्या क्या लेवल होगा खुशी का कि मैं तो दाल का सोच के आया था और यहां तो मुर्ग शरीफ, दैट्स व्हाट दे कॉल, मुर्ग शरीफ है यहां पे। आई मीन यू आर एक्सपेक्टिंग लेस, व्हेन यू गॉट यू वर क्वाइट हैप्पी। बट इफ यू आर गोइंग एंड सेइंग कि जी उधर गोश्त होना चाहिए वैसे लंच के साथ, और वो भी निक्का है, और साथ जो है ना रायता सलाद ये वो, और स्वीट डिश जो है ना कोई अच्छी सी खीर होनी चाहिए। वहां पे आप जाते हैं, वो आपको सब्जी खिलाते हैं, और बाहर आके जनाब कहते हैं यार देखो इतने मालदार लोग हैं, सब्जी यार, वो भी बैंगन वो भी बैंगन, गजब खुदा का। तो चलो तुसी गोश्त में सब्जी डाल लो, कुछ ऐसा कर लो। क्या किया उन्होंने हमारे साथ? तो आप क्या करेंगे? आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, वो पूरी नहीं हुई, तो हमने क्या किया? हमने लाइफ के साथ, अपने आप के साथ, लोगों के साथ बड़ी ऊंची ऊंची एक्सपेक्टेशंस एडजस्ट कर ली कि अच्छा जी ये इनसे मेरी ये तवक्कुआत है, और फिर जब वो पूरी नहीं होगी, एज अ रिजल्ट यू विल बी unhappy. So you don't need to expect that much from the people. Okay, let's see. When you are going on in life, you got to go forward and you have to look forward. English में एक बड़ा मशहूर idiom है look forward. Look forward कहते हैं कि एक पॉजिटिव माइंड के साथ एक अच्छे तरीके से किसी आने वाली चीज का एक्सपेक्ट करना कि ये होगा. I look forward to, right? Now let's see, I need a volunteer for this activity. Let me see who can do that. We can call that young boy. Please come here. Let's just see what happens if he's not looking forward. Ready? Good. सामने मुंह करें, गर्दन घुमा के पीछे करें, गर्दन पीछे, देखना इधर है, मेरी तरफ देखना है, ठीक है? अब आगे को चलें, देखना मेरी तरफ है, देखना मेरी तरफ है, गर्दन घुमा के। इफ ही इज ओके नाउ, अब आपने बैकवर्ड चलना है, बैकवर्ड, और कोशिश करें अगर भाग सकते हैं तो बैकवर्ड। बस 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 बस, फिजिकल फिट है, अच्छा ये दीवार भी तोड़ के आगे निकल जाए। आप क्या देख रहे हैं? ओके नाउ लिसन, अब सामने देखना है, जो बताना पड़ता है। इफ यू आर लुकिंग बैक एंड यू आर ट्राइंग टू मूव अहेड, कैन यू डू दैट पॉजिटिवली? गाड़ी चलाते हैं ना, एक दिन ये करें, गाड़ी चलाते हुए सिर्फ इस शीशे को देखना है, आगे नहीं देखना, इधर ही देखना है कि पीछे क्या हो रहा है, ठीक है? या साइड वाले पे देखना है या इधर देखना है। एकदम जब झटका लगेगा पता चलेगा you bumped into something or somebody. So remember, do not try, and you cannot even go forward when you are looking backward. If you're going forward, you have to look forward. If you're going backward, then you cannot go forward in the same way, right? Thank you. Okay, now there are two things. Number one, what you can do, and number two, what you cannot do. ऐसा है? What you can do and what you cannot do. Most of the time what you can do, that's what you take for granted. But what you cannot do, you're always banging yourself with that, and there you have certain problems. For example, I'm doing a job and I'm really unhappy with my boss. Now, if that job is very important for me and I cannot get another job, so can I change my boss? हाँ, एक दिन मैं बॉस से ये रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि बॉस इंसान बन जाओ, मुझे आप अच्छे नहीं लगते हो? Never, you can't do it. So this is the thing which is out of your control. Now you need to see what is in your control and what is out of your control. The things which are in your control, control them and enjoy your life. हम लोग क्या करते हैं जो चीजें कंट्रोल में नहीं होती, right? I mean, I know many people, they'll start talking against the government. Against the government they are talking, and all the time full energy के साथ गवर्नमेंट के खिलाफ बातें करते रहेंगे. Now government is actually not in their control. Can they control it? They can't control it. So what they can control, they should focus on that. So in order to enjoy your life, you need to see what I can control. ट्रैफिक में फंस गए, आगे भी गाड़ियां, लंबी लाइन, पीछे भी गाड़ियां, ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं. अब बताएं आपके कंट्रोल में क्या है? स्टीयरिंग. उसको घुमाते रहें. Okay, so you cannot go forward, you cannot go anywhere.
नाउ द थिंग इज देयर आर टू ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर 1, ट्रैफिक के निजाम को बुरा भला कहना शुरू कर दे, पूरी तकरीर करे, ये जी नाब ये यहां का निजाम ही ऐसा है, ये है वो है. एंड व्हाट इज ऑप्शन नंबर 2? सब्र करें, बाकी भी तो खड़े हुए हैं ना भाई, आप अकेले नहीं हो. मे बी एट टाइम्स इट कैन बी कि आप बात करके आपको थोड़ा सुकून मिलेगा, बट उससे आपकी टेंशन बढ़ेगी. टेंशन बहुत ज्यादा, फिर क्या होगा, आप और चल भी उन तेनू की हो गया, होता है कि नहीं होता, ये आगे वाला ही नहीं जा रहा है, ये इसको पता नहीं क्या हो गया, इसको क्या हो गया, आप सबको ब्लेम करना शुरू कर देंगे. सो अगेन दैट्स गोइंग टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ अनकंफर्टेबल फीलिंग्स. ओके, नाउ लेट्स सी. आप लोग अगली एक्टिविटी के लिए अपने मोबाइल्स टेबल पे रखें. I'll not take it, don't worry. Yeah. Put your mobiles on the table. Yeah. Good. Everybody's got it? Now, what we're going to do, मैं आपके पास से गुजरूंगा और आपने मुझे अपने मोबाइल की तारीफ में एक जुमला कहना है. अपने मोबाइल की तारीफ में एक जुमला कहना है, और जैसे नहीं शेखियां बिगाड़ते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज माई मोबाइल एंड आई से ये बेस्ट मोबाइल है, बेस्ट. नाम सुना है कभी एप्पल का? ये वो वाला है, राइट? लाइक दिस यू आर गोइंग टू एक्चुअली टॉक. रेडी? ओके, नाउ लेट्स सी. मेरे पास ये वाला मोबाइल है, मैं अपने इस मोबाइल से बहुत खुश हूं. ज्यादातर मुझे कॉल करना होती है, इस पे कॉल भी हो जाती है, और मुझे मैसेजेस करना होते हैं, इस पे मैसेज भी हो जाते हैं. इंटरनेट की मुझे जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरा उससे कोई काम ही नहीं है. आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दिस मोबाइल, और बड़ा अच्छा मोबाइल है ये. आई मीन यू कैन सी, ड्यूरेबल है, बैटरी टाइमिंग इतनी अच्छी है, इसमें सब कुछ है जो मुझे चाहिए, राइट? और इस पे रिंग टून्स भी हैं, पॉलीफोनिक रिंग टून्स, आम वाली नहीं, अच्छी पॉलीफोनिक रिंग टून्स भी हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस मोबाइल, राइट? दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपेंस इन द बिगिनिंग. और उसके बाद क्या होता है, आप घर से निकलते हैं. अब मैं घर से निकला हूं, अब आप लोगों ने मुझे अपने मोबाइल से बताना है कि क्या क्या है. बैठे रहे, बताना है अपने मोबाइल के बारे में, शेखियां मारनी है जल्दी जल्दी से, तेजी से. सारे खड़े हो जाएं, जरा एकदम खड़े हो जाएं, ऐसे नहीं बात बनेगी, ठीक है? दिस इज ओके. खड़े हो जाएं, अपना मोबाइल रखें ऐसे सामने रखें, और एक इशारा करें मेरी तरफ, ऐसे, ठीक है? आपने मुझे अब कहना है कि ये जो मेरा मोबाइल है ना, आपके मोबाइल से लाख दर्जे बेहतर है. बोलें जरा. अब इसी तरह के कुछ और जुमले बोलें. कैरी ऑन, सब लोग. इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, लाइट बहुत अच्छी, कैमरा भी है, डेटा भी ज्यादा है, अब स्लिम भी है. अच्छा, तो कितना अच्छा मोबाइल है यार. हाँ, मेरे पास तो ये है. ये देखिए, अब ये वापस आ गया, ठीक है? और ये वापस ऐसे आएगा. होगा कि नहीं होगा? क्या किया? कंपैरिजन, राइट? एंड लुक्ड एट अदर्स, कि दूसरों के पास क्या है. उससे पहले बड़ा कंफर्टेबल था, जब तक घर में था, अपने आप में था, he was very very happy, right? But when he compared his mobile with others, अब मुझे बताएं, क्या ये बंदा खुश रह सकता है? उसको क्या याद आएगा? उसका बड़ा मोबाइल है, उसके ऊपर अगर कोई क्लिप चलाया हो, बड़ा क्लिप नजर आएगा. होता है ना, मेमोरी, वाह, शुरू में आया ना 32 जीबी, जीबी नहीं ना जिनको कहना आता था, 32 जीबी दा मेमोरी कार्ड, नहीं मेमोरी नहीं कहते, मेमोरी कार्ड, 32 जीबी, क्या बात है. उनके च किन्ने गाने आ जाएंगे, तू भावें 1000 कर लें. वो बंदा वाकई सोचता है कि 1000 गाने आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो. देन ही विल बी अनकंफर्टेबल विद दिस मोबाइल. फिर पता है क्या करेगा? फिर इस मोबाइल को छुपा के ही रखेगा. कॉल भी अटेंड करनी है ना, तो बस ऐसे ही निकालेगा, कान के साथ लगाया, एंड ऑल दैट. नाउ ऑन द अदर हैंड, if I am strong enough from my inside, तो आपकी ये जो सारी बातें हैं क्या मुझ पे असर करेंगी? नहीं करेंगी. ऑलराइट, आई वॉक अगेन. आपने अपने मोबाइल की तारीफ करनी है, मुझे बताना है, मेरे पास ये मोबाइल है, बताएं जरा दोबारा से. कम ऑन, बताएं. ओके, ऑलराइट, ओके, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, जब होगा ले लेंगे.
हाँ जब होगा ले लेंगे, मेरा अच्छा खासा गुजारा हो रहा है। ये देखिए इस मोबाइल की क्वालिटी, ये फेंक भी दिया ना उसके बाद उठा लिया, ये फिर भी चल जाएगा। अभी बड़े बड़े को उठाया तो फिर चलेगा नहीं। सो आई एम हैप्पी विद दैट। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सिट डाउन, थैंक्स अ लॉट। Okay, now we are going to do some activities to smile and to laugh. Different, थोड़ा सा चेंज करते हैं सीक्वेंस, ठीक है। हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि खुशी मिलेगी तो हंसूंगा ना। कोई कहता है ना जी हंसते क्यों नहीं हो, हंसया करो। वो नहीं, क्या पंजाबी में कहते हैं हंसया खेडिया करो, राइट। वो कहते हैं जी हंसूंगा तब जब खुशी मिलेगी। अब मुझे बताइएगा, हंसेंगे तब जब खुशी मिलेगी या फिर हंसेंगे तो खुशी मिलेगी? हंसेंगे तो खुशी मिलेगी, right? Definitely. So we're going to do one activity. In that you have to laugh. There is a complete group of knowledge. There is a subject. इसको हम कहते हैं laughology. Laughology is a subject, right? And in laughology you are going to see certain changes. अभी जो आप feel कर रहे हैं, and after going through the activities, how you're going to feel, that's what you're going to see. Laughology is actually you've got to laugh without any reason. कोई reason नहीं, कोई joke नहीं, कोई funny चीज नहीं, but you got to laugh. Initially it will look odd, initially it will look very strange, and then it's going to be natural. और कुछ देर के बाद आपकी वो हंसी अंदर से आ रही होगी, right? So let's just take a start. You'll have to stand up for that. Let's do this. Okay, great. You got to support me and help me, okay? और एक दूसरे को देखना भी है। सांस खींचना है अंदर को, right? अंदर को सांस खींचना है, और जब उस सांस को बाहर निकालना है, रोकने के बाद एक जोरदार कहके के साथ सांस बाहर निकालना है। For example, come on, let's try again. सांस अंदर को खींचे। When I say go, then you got to go. All right, let's try again. अब थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। अब जो है एक हाथ भी मारना है। Okay, let's try again. अब दोनों हाथ मारने। All right, check yourselves now. कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? Yeah, energetic. Okay, so you need to find some opportunities where actually you are going to laugh, and then you see mood change हो गया, and happiness and enjoy उसका ताल्लुक आपके दिमाग से बहुत है, आपके ब्रेन से बहुत है। ये अभी जो आप थोड़ा सा मुस्कुराए हैं, हंसे हैं, एकदम आपने फील किया कि मूड चेंज हो गया। मूड क्यों चेंज हुआ? दिमाग में कुछ केमिकल्स रिलीज हुए हैं। The time when you laugh loudly, when you smile, there are few chemicals which are released in the brain, और वो आपके बॉडी को रिलैक्स कर देते हैं। You feel very good. Okay, so you need to find some opportunities, and let me tell you, this thing is very very good for your it protects your health, it strengthens your immune system. ये हंसना मुस्कुराना आपका immune system जो है वो इससे मजबूत होता है, and it contracts fear. खौफ से भी आप आजाद होते हैं। Then it increases empathy, दूसरों को सुनना, उनकी बातों के साथ हमदर्दी करना, it increases that, and last but not least it increases the longevity, लंबी लाइफ हो जाती है if you are going to smile and if you are going to laugh. Okay, thank you, please sit down now. Okay, it's good. If a boat is going in the sea, deep sea, एक कश्ती imagine करें, एक बहुत बड़ा समुंदर, और उसमें वो कश्ती जा रही है। समुंदर का कितना पानी होता है? होता है? कश्ती कितनी सी है समुंदर के मुकाबले में? कुछ भी नहीं, राइट? वो कश्ती अगर पानी में डूबती है, अगर वो कश्ती पानी में डूब जाती है तो किस वजह से डूबती है? ओवरलोडिंग। ओके, अगर वो ओवरलोडेड भी नहीं है, एक सुराख हो जाए। बेसिकली कहने का मतलब ये कि जब तक वो कश्ती पानी के ऊपर है उसे कोई भी डुबो नहीं सकता। जैसे ही वो पानी कश्ती के अंदर दाखिल हो जाएगा तो फिर क्या होगा?
डूब जाएगी। टाइटैनिक देखी है ना, अब उसमें जैसे पानी आता है अंदर, right, and how it sinks actually, such a big shape and it sinks. So in the same way, जब तक आप अलाउ नहीं करते दुनिया भर की नेगेटिविटी को, दुनिया भर के नेगेटिव ओपिनियंस को, दुनिया भर की परेशानियों को, unless you allow those things to come in your ship, तब तक आप उसमें डूब नहीं सकते। I mean, you will be always floating on the surface. लेकिन जब आपने इजाजत दी कि अच्छा ये प्रॉब्लम हुआ, ये क्यों हो गया, एक सुराख हो गया कश्ती में, राइट, एंड देन अगेन देयर इज समथिंग एल्स, यू अलाउड इट, एक और सुराख हो गया, वो पानी आता जाएगा, एंड देन यू विल सिंक इनटू दैट। सो बेसिकली यू गॉट टू सी कि मैंने किन चीजों, अब देखिए अभी हमने मोबाइल की बात की, जब मैंने अपनी कश्ती में सुराख होने दिए तो मैं डिप्रेस हो गया कि यार इनके पास वो, इनका मोबाइल बड़ा अच्छा लगा मुझे, ओके सही बता रहा हूं, राइट, सो इनके पास इतने अच्छे मोबाइल, और जब मैंने इजाजत नहीं दी तो then I'm not going to sink anywhere around. Okay. All right. Now there are few things and then we'll finish this part of the seminar and then there are some videos. Videos देखनी है? Yeah, good. So we'll be watching the videos, just 5-10 minutes more. Happiness is when what you think, what you say and what you do, they are in alignment. What you think, what you say and what you do. जो सोचते हैं वही कहते हैं और वही करते हैं, then you will be happy. दिमाग में कुछ और चल रहा है, कह कुछ और रहे हैं, हरकतें कुछ और हैं, then you'll never ever be happy and you will never ever be able to enjoy your life. Temporary enjoyment हो सकता है, but actually you'll not be able to enjoy that. So there should be harmony between what you think, what you say and what you do. Think, say and do. Yeah, you got to remember that. Okay, now it's an attitude. आपने देखा है बारिश होती है, बारिश होते हुए देखी है, जब भी बारिश होती है छोटे मोटे परिंदे क्या करते हैं, they seek shelter. कोई दरख्त के अंदर घुस जाएगा, कोई पत्तों के नीचे, कोई और जगह देखेगा जहां पे जाके बारिश से बचा जा सके. This is the attitude of the small birds. But we got a bird, we call it eagle. Eagle क्या करता है? Eagle does not find refuge anywhere. Eagle क्या करता है? बादलों से ऊंची उड़ान कर लेता है, बादलों से ऊंची उड़ान कर लेता है. अब जब वो बादलों को ही चीरता हुआ ऊपर चला गया है, वहां पे कोई बारिश होगी? बारिश आपने देखा जब बारिश होती है तो बादल नीचे आए होते हैं. सो ईगल हैज द एटीट्यूड, वो अपने आप को छुपाता नहीं है, बारिश से बचता नहीं है, फौरन परवाज करके बादलों से ऊपर चला जाएगा. अब वहां पे बारिश नहीं है. सो दिस इज एक्चुअली द एटीट्यूड. एक तो ये है कि बारिश से बचते फिरें, एंड ये क्लाउड्स जो हैं किसी भी चीज के हो सकते हैं. These clouds can be the clouds of tensions, difficulties, problems, negativity, whatever. So one thing is कि आप कहीं refuge ढूंढें कि अगर मैं आधा घंटा फर्ज करें अगर बारिश हो रही है अंडरपास में खड़ा हो जाऊं ना होता है ना, अंडरपास में खड़ा हो जाऊं, किसी पुल के नीचे खड़ा हो जाऊं तो गुजारा हो जाएगा. So you got to see whether you're going to fly over the problems or you're going to stay under the problems. This is what we call attitude, right? And you got to change this attitude basically. Okay, next. This is my very old camera. My father actually brought this camera from Saudi Arabia. That time मेरी बचपन की जितनी तस्वीरें हैं ना इस कैमरा से आई हैं, और अभी आजकल तो मेरा ख्याल है नहीं चलता भी, नहीं चलाते. याशिका का कैमरा उस वक्त में, याशिका, वाओ. एंड दिस कैमरा इट वॉज क्वाइट पॉपुलर कैमरा, और इसमें रील डालते थे, यहां से आगे करते थे, और पता कितनी तस्वीरें आती थी? 36. लेकिन अगर किस्मत अच्छी हो तो, हाँ, वो किस्मत जिनकी अच्छी होती थी उनकी 36 आती थी, बाकियों की 30 आ गई, 18 आ गई, एंड ऑल दैट. बड़े इश्यूज होते थे. सो दिस वॉज एक्चुअली द बिगिनिंग. सो नाउ माई पॉइंट इज व्हेन वी टॉक अबाउट जॉय, व्हेन वी टॉक अबाउट हैप्पीनेस, इट्स जस्ट लाइक गोइंग टू बी अ कैमरा. अब कैमरा से जब आप तस्वीर बनाते हैं, आजकल आप लोग सेल्फी बनाते हैं ना, कभी किसी ने सेल्फी बनाई है सुबह उठते हुए, ऐसा अजीब सा मुंह, अभी बेड पे ही है, उठा है, बाल भी खराब, मुंह भी ऐसा, और सेल्फी बना के गुड मॉर्निंग, कोई करेगा ऐसे? नो, दे विल नॉट डू इट. दे ऑलवेज फोकस द बेस्ट पार्ट ऑफ देयर लाइफ. When they are making selfies or when they are making pictures, what do? They are always focusing the best part of their life. Eating pizza in Pizza Hut, eating burger in McDonald's,
ईटिंग हलीम इन KFC? नहीं होता। टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है। ईटिंग हलीम विद कुलचाज इन KFC। ओके, कौन सा KFC? हमारे मोहल्ले में खुला है। समथिंग लाइक दैट। सो वी ऑलवेज फोकस व्हेन वी आर टेकिंग अ फोटो। और फिर आपने अपना एटीट्यूड चेक किया जब कैमरा आप पे होता है? I mean, when the camera is on you, then again you want to give your best appearance. होता है कि नहीं होता? आप अपनी बेस्ट अपीयरेंस देना चाहते हैं, और कुछ लोग अपनी बेस्ट अपीयरेंस देने के लिए कैमरा पे मुंह भी बना लेते हैं। नोट किए? गर्ल्स स्पेशली दिस व्हाट दे से, I mean, the kiss वाला मुंह बना लेते हैं, like this, because they want, उनको शायद लगता है कि मुंह चौड़ा है या मुंह ऐसे है तो ऐसे अच्छा आएगा, right? So all that, right? Same is the case with you and your life. In your life, I mean, you got the camera, why don't you focus on the best part of your life? अब कैमरे में कभी ऐसे होगा, मैं कहूं जी मैं तस्वीरें बना रहा हूं, एक इधर बना ली, मैं तस्वीरें बना रहा हूं, एक इधर बना ली, एक इधर बना ली, एक इधर बना ली, ऐसे होगा? नॉट एट ऑल। ऐसे कोई नहीं, कभी गलती से तस्वीर नहीं आ जाती, अपना ही पांव की तस्वीर आ गई, कहते हैं ओए बटन दब गया, या अपना ही सिर्फ नाक की तस्वीर आ गई, होता है ना गलती से। सो आई मीन, और उसको आप क्या करते हैं? सबसे पहले डिलीट करते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न फ्रॉम द कैमरा। फोकस ऑन द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ. You need to focus on that. Worst is there. You can resolve those things as well, but actually you got to focus on the best part of the life. Life is like a camera. Just focus on what's important and capture the good times. अब कैमरा में जो तस्वीरें हैं, आप लोगों का बचपन का एल्बम है? सबका है ना, जिसमें दिखाते हैं तू है, आप देखते हो अच्छा मैं हूं, ठीक है? So what they do, they capture the good time and then, अच्छा इस कैमरे को कभी किसी ने यूज किया? पहले सुना? इसमें एक चीज होती थी, उसको कहते थे रील, और रील को सबसे पहले क्या करवाते थे? डेवलपिंग होती थी, और पहले क्या बनता था? नेगेटिव, और उसके बाद क्या बनता था? पॉजिटिव। उसको पॉजिटिव कहते हैं, राइट? सो फर्स्ट वी यूज्ड टू मेक द नेगेटिव, सो डेवलप करते थे, उसके बाद नेगेटिव्स बनते थे, और बाज का आप खुद सिलेक्ट करके बताते थे, और वो देखे नेगेटिव कैसे अजीब से होते थे बाल भी अजीब से और सारा। सो उसी नेगेटिव से एक्चुअली दे यूज्ड टू मेक पॉजिटिव। सो डेवलप फ्रॉम द नेगेटिव्स, एंड इफ थिंग्स डोंट टर्न आउट, जस्ट टेक अनदर शूट। ठीक है, मैंने तस्वीर ली, अच्छी नहीं आई तो क्या करूंगा? एक और शूट लो, राइट? अगर फिर भी अच्छी नहीं आई तो फिर एक और शूट। और मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक्त में वो एक दफा मेरी कुछ कजन्स थी, तो उनमें से किसी एक की तस्वीर आई, उस बेचारी का मुंह खुला हुआ था और बड़ा अजीब सा खुला हुआ था। वो तस्वीर आई, उसने सबसे पहले वो तस्वीर फाड़ दी कि जी ये मैं ऐसी थोड़ी हूं कि अगर तस्वीर में ऐसी मुंह खुला हुआ इस तरह का आ गया। शी टोर ऑफ द पिक्चर, राइट? सो you have to see what is going to be positive, and this camera is the best example of that, right? Okay, let's go ahead. All right, now I need another thing. I brought it all for you. Now we can see you as well in that, okay? What is this? Mirror. अब मैं आपकी तरफ आऊंगा वन बाय वन, ये शीशा लेके। आपने इस शीशे में डरावने फेसेस बनाने हैं, ठीक है? टेंशन ही कोई नहीं। किसने कहा? ये देखा ना, जो बच्चे डराते हैं रात को, ये वो है, ओके? ऑलराइट, ओके, लेट्स सी। इफ यू स्टैंड अप इट्स बेटर। खड़े हो जाएं। इस शीशे में डरावने आप लोगों को रिलीफ मिल जाएगा, डोंट वरी, बट यू कैन स्टैंड अप एज वेल। डरावना सा मुंह बनाए, इस पे देखना है, ओके? अच्छी सी सही बच्चे डराने वाली, ठीक है? ये वीडियोस हम बाद में जो है ना यूट्यूब पे डालेंगे, कि अगर बच्चे नहीं सोते तो ये हमारे पास 25-30 ऑप्शंस हैं, कोई एक दिखाएं, इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा। ओके, आज ऐसे को डर जाएगा। ऑलराइट, यस, ओके। अब बनाए ना, मुख्तलिफ किस्म की बनाए, कभी किसी ने नहीं किया ये? कभी नहीं किया? बचपन ऐसे मैं बड़े बच्चे डराए, ऐसे कपड़ा लपेट दो ना। ना काका ना, बस यही काफी है। डरावना सा मुंह बनाए, बोलो। चले आप ये बोले, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ज्यादा जल्दी वाला कोई नहीं खाते हैं। हाँ, चले, लेट्स सी जनाब।
कुछ डराना नहीं है, बट डर अच्छा मैं बताता हूँ कि जो ना डराने का सही है, हा 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 हा, वो हंसी होती है जो जी। ओके, डर लगा नहीं लगा? एंड यू? ओए वाह, गुड जी प्लीज जी। ओके, well done, let's do it again. जरा इनको डराएं। Okay, all right, let's just do it for the last time. ये कभी इस्तेमाल की है अपनी ताकत? ये yes, do it. Okay. Well done, well done. ये आवाज भी निकाली। Good job. ओए wow. हा 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 हा। Good. डराना मुंह नहीं चिढ़ाना नहीं होता। ओके, लगी ना, बोलेगा नहीं फिर। ओह वाओ। Yes. Wow, this is the best one, हाँ? जितना आप तसल्ली से बैठे थे ना, उतना ही माशाल्लाह। तुक नहीं फेंकना। All right, now let's see. This time आपने जो आपके बेस्ट फेशियल एक्सप्रेशंस है ना, स्माइल वाला फेस जब बनाते हैं, बेस्ट स्माइल वाला फेस और एक फखर वाला फेस और एक ऐसा फेस कि जो आप बनाते हैं जब आपको अपनी पर्सनालिटी पे कॉन्फिडेंस होता है, वो बनाना है। और देयर शुड बी अ स्माइल ऑन योर फेस। स्माइल के साथ ये तो लग रहा है किसी के घर में जाती मार रहे। हाँ ऐसा कौन आ गया? ये गुड नजर आ रहा है ना अपना? गुड, कभी हंस भी लिया करो। ओके गुड, वाह माशाल्लाह, पूरी स्माइल, दांत निकाल के। ओह गुड, प्लीज। ओके, हंसी भी डरावनी लग रही है। ओके, एंड यू? गुड। Okay, yeah, that's better. I am the best. All right, good. Smile तो पूरी होनी चाहिए। Good. And you? All right. Cool. ये आपकी हंसी जो है ना खतरनाक वाली लग रही है। All right. And you? हंसने। Okay, you can smile as well. All right. This lovely. This lovely. Now see that this mirror is actually your life. This mirror is your life. The way you are going to look at it is going to look back at you. हंस के देखेंगे तो ये हंसेगा, खौफ में आके देखेंगे तो ये आपको खौफजदा कर देगा। This is actually your life. I mean, this is the reflection and this is all about your life. और हो ही नहीं सकता कि आपके चेहरे के तासुरात और हैं, यहाँ पे जो इसके अंदर इंसान है वो हंस रहा है, आप रो रहे हैं और ये हंस रहा है और आप कहें भी तू क्यों हंस रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। Whatever you are, जो भी है, it's just going to be a sort of a reflection. It's going to reflect back at you. So what you give life, life will give back to you. Life will reflect that to you. Thank you. Please be seated. Thanks a lot. ये क्या मदारी लगा रहे हैं, कभी कुछ। What do you think is inside? Candies. Very good. Right? अभी जरा इसको देखना है, कुछ हो रहा है? नहीं? कुछ कोई फीलिंग आ रही? सिर्फ क्यूरियोसिटी। चिकन छोले, चिकन होएगा। Delicious dish. Okay. All right. Still you are not sure. हाँ, जादू का चिराग है। Good. Anything? इसमें हलवा है। All right. जुमेरात नहीं है आज। अच्छा। Don't worry. Okay. You didn't feel anything. Okay. So unless you are going to think deeply about something, अब देखिएगा क्या होता है। You ready for that? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इमली खाई है कभी? इसको सूंघना है। इमेजिन करना है, सूंघना है। मुंह में पानी आ रहा है? हाँ, खा भी सकते हैं, उठा लें, एक साफ है, ले लें एक पीस ले लें।
और बल्कि से खड़े होके खाएं, खड़े होके। ये देखना अभी इनके मुंह को क्या होता है। Yeah. If you want to take it, you can take it. Yeah. देख के मुंह में पानी आता है? Okay. Please. नहीं, मैं खाता नहीं, आपके लिए लेके आया हूं। Okay. It's great. If you want to taste it, you can taste it. Good. All right. You want to taste it? Please, please. उठा लें। साड़ी भी पई रहनी है। Okay. All right. लेनी है? You can take it if you want to. खाइए किसी ने पहले? इमली खाई है ना? Okay, बहुत खाइए। ये ले लें अगर लेनी है तो। Yeah. Okay, please. Wanna take it? Yeah, sure. It's gonna be good for you. Okay. All right. Now, as long as you were unaware of what it is, there wasn't a feeling. कुछ भी नहीं था। जब तक ये ऐसे था ना, it was a mystery, secret. तब तक आपको कुछ पता नहीं था। But when it opened, you realized, दिमाग में आया, इमली का जायका खट्टा होता है, खट्टा दिमाग में आया, and then you know your mouth was watering. हुआ कि नहीं हुआ? Mouth water, जो नहीं भी खा रहे, बल्कि किसी को खाते हुए देखें तो ज्यादा पानी आता है मुंह में, right? Your mouth was actually watering. So this is sometimes this is happening with us. लोगों के पास जो चीजें हैं ना, they are just like इमली, and we look, मुंह में पानी आता है। आपका मोबाइल देख के मेरे मुंह में पानी आया था। Okay? इसकी हिफाजत कीजिएगा अच्छी तरह से, right? And there are so many other things around. When we see them, I mean, our mouth is watering. But why? Because we are associating this very thing about the taste of it. कि अच्छा वो वाला मोबाइल। अब association क्या है? If I'm talking about a big car, बड़ी गाड़ी, automatic, full air conditioned, things like that, and my mouth will be watering more and more and more. But once मैं अपने आप को बंद कर लेता हूं कि भाई मैंने नहीं सोचना उसके बारे में, right? Then do you think I'll be happy or sad? I'll be happy. I'll be happier actually. I'll be satisfied. इसका ये मतलब हरगिज नहीं है you're not gonna get it. You are going to get it one day. लेकिन दिल नहीं जलाना. एक होता है ना दिल जलाना. Okay, so you're not gonna do that actually. Okay, that's it.